students, how are you all? I hope you all must be going very well. Today we are back here with our new session of Science Class 6, that is chapter number 11 about nature's treasures. So today in this session, students, we are going to learn and discuss about all those treasures and the resources which are given to us as a gift by the nature or by the God. Okay, you're going to learn about air, solar energy, soil, rocks, minerals, water, forests, fossil fuels, and all the natural resources. Let's start the chapter with, first of all, the introduction. Okay, see. So, everything we need to live, the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the fuel we use, these all comes from nature, and these gifts of nature are called natural resources. So, what they're saying, students, कि जो भी चीज हम सभी को रिक्वायर्ड है फॉर द सर्वाइवल फॉर अवर लिविंग, जैसे कि वी नीड एयर टू ब्रीथ, राइट, फिर हमें वाटर चाहिए टू ड्रिंक, फूड चाहिए टू ईट, एंड फ्यूल की भी रिक्वायरमेंट है यूज करने के लिए. तो ये सभी चीजें हमें किससे मिलती हैं? नेचर से मिलती हैं. एंड ये सभी गिफ्ट्स ऑफ नेचर को हम नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं. दे आर एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. हमारे सर्वाइवल के लिए एंड सभी लिविंग बीइंग्स की ग्रोथ के लिए these natural resources are very essential. तो स्टूडेंट्स, अब सभी रिसोर्सेस में से कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल. दे आर ऑलवेज अवेलेबल. ये हमारे लिए हमेशा अवेलेबल है एंड ये नेचर के थ्रू रिन्यू होते रहते हैं. ओके, बट देर आर सम अदर रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है फॉर गेटिंग फॉर्म, इनके फॉर्मेशन के लिए एंड इनके यूज होने में भी, यानी कि आप इन्हें बहुत ही जुडिशली यूज करते हैं. बिकॉज अगर हम इन्हें जुडिशली यूज नहीं करेंगे, इन्हें एक कॉन्टिन्यूस एंड एक एक्सेसिव रेट पे इनका यूज किया जाएगा, सो दे विल ऑल गेट एग्जॉस्टेड वन डे. ओके, ये रिन्यू इतनी जल्दी नहीं होते हैं, राइट. तो बाय स्टडिंग नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को स्टडी करने से हमें क्या समझ में आता है कि कैसे एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ऑल दी सपोर्ट लाइफ. Okay, and why we must use them wisely to avoid shortage. इनकी shortage को avoid करने के लिए हमें क्यों इनका use wisely करना चाहिए? कैसे कुछ human activities like deforestation and overuse of fuel, ये कैसे हमारे nature के balance को affect करते हैं? Okay, so इस chapter के through हम different types of resources को explore करेंगे, उनकी importance को in our daily life and the ways किस तरीके से हम उन्हें conserve कर सकते हैं for our future generation. We are going to discuss about all of these in this chapter. Okay, see, nature's treasures are gifts. Okay, as I told you कि nature treasure क्या है? Gifts की तरह है, like river, soil, plants and animals, जो कि human life and ecosystem को support करते हैं, sustain करते हैं. And इन resources को conserve करने से हम biodiversity को maintain रखते हैं and future generation को भी support कर सकते हैं. So first of all, we have the topic of natural resources. Nature provides us with everything we need to survive. So as I told you, nature हमें वो सभी चीजें provide करता है जो हमें survive करने के लिए जरूरी है. And these useful things, ये सभी useful things जो हमें nature से मिलती हैं, they are called natural resources. Okay? They help us to live and grow. ये natural resources हमें survive करने में, grow करने में help करती हैं. Example, sunlight, air, water, soil, rocks and minerals, etc. There are some fossil fuels also like coal and petroleum. ये fossil fuels भी हमारे nature में ही found किए जाते हैं and they are also very useful. Now types of natural resources. Students, natural resources को हम two major groups में divide करते हैं. Number one is renewable resource and other is non-renewable resource. Right? Renewable resources वो हैं which do not get used up even after being used continuously. ऐसे resources जिन्हें हम अगर continuously भी use करते हैं ये कभी एग्जॉस्ट नहीं होते हैं. ओके, एंड सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एग्जांपल, एयर, वाटर एंड सनलाइट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दे डू नॉट गेट यूज्ड अप इवन आफ्टर बीइंग यूज्ड कंटीन्यूअसली. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स. मींस व्हाट? द रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस्ड वंस दे आर यूज्ड अप. ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें आप क्विकली, यानी कि तुरंत क्या नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते एक बार अगर उनका यूज हो जाता है. ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं.
Non-renewable resources के examples हैं fossil fuels like coal, petroleum, natural gas, as well as जो rare minerals हैं जो कि हमारे sometimes meteorites में find out किए जाते हैं, they are also the non-renewable resources only. Okay, so we should use them very wisely and judicially. So first of all, we are going to learn about air. What is air? Air is a name given to the mixture of gases that make up the Earth's atmosphere. एक ऐसा मिक्सचर गैसेस का जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाता है, दैट इज नोन एज एयर. ओके, जो हमारे एयर सराउंडिंग में है, हमारे प्लैनेट के सराउंडिंग में है, ये कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है. एंड द लेयर ऑफ एयर, एक ऐसी लेयर एयर की जो हमारे अराउंड द प्लैनेट है, अराउंड द अर्थ है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ओके, बिकॉज एटमॉस्फेयर जो है अर्थ को वार्म रखने में हेल्प करता है, तो एटमॉस्फेयर को हम अर्थ्स ब्लैंकेट भी बोलते हैं. राइट नाउ, ऑल लिविंग बींग्स, सभी लिविंग बींग्स जो है एयर के ऊपर डिपेंडेंट है टू सर्वाइव. ओके, while we can live without food or water for a few days, it is nearly impossible to survive more than a few minutes without air. So students, without air and without food and water, तो एक बार एक लिविंग बीइंग क्या कर सकता है, फ्यू डेज के लिए सर्वाइव कर सकता है. ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकता, बट स्टिल फ्यू डेज तक हम विदाउट फूड एंड वाटर सर्वाइव कर सकते हैं. बट कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एयर फ्यू मिनट्स तक भी सर्वाइव नहीं कर सकता. ओके, नाउ एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. as we all know कि एयर क्या है, एयर एक मिक्सचर ऑफ गैस है जो कि इनविजिबल है. इसका कोई कलर, स्मेल, टेस्ट, इट डज नॉट हैव एनीथिंग, राइट? एंड इट सराउंड्स एवरीथिंग, हमारे चारों तरफ ये सराउंड करता है. और दो वी कैन नॉट सी एयर, भले ही हम एयर को नहीं देख सकते, बट हम एयर को फील कर सकते हैं. लाइक व्हेन द विंड टचेस आवर स्किन, जैसे जब विंड हमारी स्किन को टच करती है, या जब ट्रीज की जो लीव्स होती है मूव करती हैं, देन वी कैन सी और वी कैन फील दैट द एयर इज मूविंग. मूविंग एयर, स्टूडेंट्स, मूविंग एयर को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड विंड. ओके, देयर आर सम एक्टिविटीज जैसे कि विनोइंग, नेचुरल इवेंट्स, ये सभी क्या करते हैं, शो करते हैं कि एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. कुछ नेचुरल इवेंट्स है लाइक स्टॉर्म. स्टॉर्म ये शो करता है कि एयर इज अराउंड अस. देयर इज एन एक्टिविटी विनोइंग. ओके, so it is a separation technique basically to separate the grains from the husk or the chaff. So the technique which is used for separating these two separate components, that is known as winnowing, and it also shows that the air is moving and it is all around us. Now next we have on the earth is covered by a thick layer of air. As I told you कि हमारा जो planet है earth वो एक thick layer of air से surrounded है, which is called atmosphere. And atmosphere जो है up to 300 kilometers above the earth surface तक extended है. जितना हम ऊपर higher जाएंगे उतना ज़्यादा जो air की thickness है वो decrease होती जाती है. All weather changes, जितने भी weather changes आते हैं वो सभी इसी atmosphere के part में आते हैं. The lower part of the atmosphere, atmosphere के जो lower part है उसमें एक ozone layer है present. Okay, and ये क्या करती है, ये sun की जो harmful UV radiations है, means ultraviolet rays और ultraviolet radiations है, इसको absorb करने का function होता है ozone layer का. and साथ ही साथ इन UV rays को हमारे earth surface तक या हम तक पहुंचने से भी prevent करती है ozone layer. These UV rays, ये UV rays क्या कर सकती हैं, serious illness cause कर सकती हैं, like as cancer and all. Okay, air fills the empty space. हमारे अर्थ पे जितना भी empty space है, that is filled by the air. And if a space, अगर space में air present नहीं होगा तो आप उसे क्या कहेंगे? That is called a vacuum. जिस भी space में air is not present, that is called vacuum. Now next we come to the topic that is composition of air. कि air का कैसे composition है? So in earlier times people believed that air was a single substance. पहले टाइम पे लोग क्या मानते थे कि air जो है एक single substance है. बट 1775 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था लेवोजियर. ही शोड, उन्होंने क्या शो किया कि एयर एक्चुअली एक मिक्सचर है गैसेस का. मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो गैसेस है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है हमारे एयर में या एटमॉस्फेयर में. एंड लेटर बाद में ये भी डिस्कवर किया गया कि एयर में अदर गैसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, नियर द अर्थ सरफेस के नियर जो एयर है उसमें मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. अराउंड इफ वी से 78% सबसे अबंडेंट अमाउंट ऑफ गैस जो है दैट इज नाइट्रोजन, अराउंड 78%, एंड ऑक्सीजन इज नेक्स्ट अबंडेंट गैस दैट इज अराउंड 21%. ओके,
Now here is a table जहाँ पे आपको air का composition show किया गया है by the volume. So as I told you, nitrogen is 78%, oxygen is 21%, carbon dioxide gas is 0.03% only, and other gases include 0.97% of the atmosphere. In addition to these gases, अब students इन gases के अलावा भी air में कुछ small amount of water vapor, dust and smoke present होता है. You can see the composition of air. They have shown you this is maximum amount of what? Nitrogen. Then this is oxygen, 21%. Then they have given you other gases, that is argon gases 0.90, other gases 0.17, and carbon dioxide is 0.03%. So this is how the air or the atmosphere around the earth is composed of. Now let us discuss each component of air in detail. First of all, we have nitrogen. The nitrogen make up about 78% of the air. As I told you, so ये सबसे ज़्यादा plentiful and abundant gas है हमारे atmosphere. And nitrogen एक crucial role play करती है in the growth of plants. नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर में से जो नाइट्रोजन है वो ग्राउंड तक रीच करते हैं नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में ड्यूरिंग रेन एंड लाइटनिंग, यानी जब रेन एंड लाइटनिंग होता है तो नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजन एयर से ग्राउंड लेवल पे आता है एंड जैसे ही एक बार ये सॉइल तक पहुंचता है इसको नाइट्रेट कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है जिसे प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं. नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, अब एयर में जो नाइट्रोजन है उसे हम क्या वो हाइड्रोजन गैस के साथ भी कंबाइन होती है अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए एंड इसी अमोनिया को जो कि एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, राइट. दीज फर्टिलाइजर्स, ये फर्टिलाइजर्स जो है प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं विच दे रिक्वायर एंड एनिमल्स का जो नाइट्रोजन मिलता है वो प्लांट्स को या अदर एनिमल्स को ईट करने पर मिलता है. ओके, there is a quickie fact over here that cities have more pollution. Cities area में जो pollution है वो ज़्यादा होता है किसकी वजह से? Due to increased level of smoke and dust which is produced from the vehicles, factories and other sources. Now the next component of air is oxygen जो कि हमारे air का 21% constituent है. Okay, and इसीलिए ये हमारी atmosphere का second most abundant gas है. एंड ऑक्सीजन जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफी एसेंशियल है. ओके, वेरी एसेंशियल. ह्यूमंस एंड एनिमल्स सभी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है टू ब्रीथ एंड उसके बाद जब ह्यूमंस एंड एनिमल्स एयर में से ऑक्सीजन गैस को इनटेक करते हैं तो उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. तो बेसिकली प्लांट्स सॉरी एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के लिए ऑक्सीजन जो है नेसेसरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. व्हाट इज दिस रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी रिलीज करते हैं फ्रॉम द फूड विच दे हैव ईटन. इट इज ऑल्सो नीडेड. अब ऑक्सीजन कंबशन के लिए भी रिक्वायरमेंट है. व्हाट इज कंबशन? कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जहाँ पे ऑक्सीजन जो है किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करती है एंड उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस करती है. ओके, जैसे कि कभी भी अगर कोई सब्सटेंस बर्न हो रहा है वी कैन से दैट द कंबशन इज टेकिंग प्लेस ओवर देयर. ओके, सो ऑक्सीजन कंबशन एंड रेस्पिरेशन दोनों ही प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है. नाउ वी टॉक अबाउट ग्रीन प्लांट्स. अब बात करते हैं ग्रीन प्लांट्स की. तो ग्रीन प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो हमारे एयर में प्रेजेंट है उसको यूज करते हैं किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, सो दैट वो अपना फूड प्रिपेयर कर सके. एंड द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ द प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. दिस वी ऑल नो, राइट. फिर इसके बाद इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ड्यूरिंग ऑक्सीजन भी गैस जो है ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है एज अ बाई प्रोडक्ट. ओके, एंड वो ऑक्सीजन जो हम यूज करते हैं टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड, राइट, ये किससे मिलती है? हमें एयर से मिलती है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन प्रोसेस. द ऑक्सीजन साइकिल. अब ये ऑक्सीजन साइकिल क्या है? इट रेफर्स टू द नेचुरल मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन. हमारे एनवायरमेंट में जो रेस्पिरेशन एंड कंबशन प्रोसेस के थ्रू एक नेचुरल मूवमेंट होता है ऑक्सीजन गैस का, जहाँ पे ऑक्सीजन गैस को यूज किया जाता है. फोटोसिंथेसिस के दौरान फिर ऑक्सीजन गैस दोबारा से प्रोड्यूस होती है, यानी कि पहले रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस को जो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो इनटेक करते हैं और उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं जिन्हें प्लांट्स एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट करते हैं. एंड आफ्टर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स अगेन ऑक्सीजन गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं. तो इस तरीके से ऑक्सीजन साइकिल जो है हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरली चलती रहती है. ओके, एंड यही साइकिल है जो ऑक्सीजन लेवल को एटमॉस्फेयर में बैलेंस रखती है. हाउएवर, लेकिन ये जो साइकिल है ये काफी डेलिकेट है एंड ये डिस्टर्ब हो सकती है अगर हम ट्रीज को एक्सेसिव रेट पे कट करते हैं
या फ्यूल्स को बर्न करते हैं. ओके, सो मेजरली ऑक्सीजन साइकिल को प्रॉपरली वर्क रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करें एंड फ्यूल बर्निंग को रिड्यूस करें. ओके, प्लांट्स यूजुअली गिव ऑफ मोर ऑक्सीजन, राइट. तो प्लांट्स जो है जितनी वो ऑक्सीजन का यूज करते नहीं है उससे ज्यादा वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके देते हैं हमारे एनवायरनमेंट में और इन द एटमॉस्फेयर. एंड जो ये फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस के कंबाइंड इफेक्ट्स होते हैं, इनका काम है हमारे नेचर में एक बैलेंस मेंटेन करना बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एयर. नाउ next we have the other component of atmosphere, that is carbon dioxide. So carbon dioxide makes up only about 0.04% of the air or 0.03% also we can say, right. Plants basically सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है वो प्लांट्स को है, बिकॉज प्लांट्स इस गैस का यूज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. व्हाई? टू प्रिपेयर देयर फूड. ओके, एंड व्हाइल डूइंग सो, एंड जब इस तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं एंड ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, एंड फिर उसी ऑक्सीजन को एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं. ओके, सो दिस शोज व्हाट कि सभी लिविंग बींग्स जो हैं कनेक्टेड हैं एंड एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं, एंड फिर इस गैस को प्रोड्यूस किया जाता है. ये गैस एक और रीजन की वजह से प्रोड्यूस होती है, जब फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल बर्न होते हैं सच एज इन व्हीकल्स, then also carbon dioxide gas is produced in the atmosphere. Next we have water vapor. Water vapor in the air. Air में जो water vapor है वो डिपेंड करता है वेदर के ऊपर, आने से बोला जाता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी. ओके, इसका फॉर्मेशन कब होता है? जब वाटर इवेपोरेट होता है. दो वाटर वेपर, भले ही वाटर वेपर क्या है, एक गैस है, इट कैन नॉट बी सीन बट वी कैन समटाइम फील इट्स प्रेजेंस. हम वाटर वेपर की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं. जैसे कि जब हम एक कूल सरफेस को टच करते हैं, या सॉरी, जब वाटर वेपर एक कूल सरफेस को टच करता है तो ये अगेन वाटर ड्रॉपलेट में चेंज जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, राइट. कोस्टल एरिया, स्टूडेंट्स कोस्टल एरियाज में जो वाटर वेपर का लेवल है वो काफी हाई होता है, बिकॉज वहाँ पे सी से काफी ज्यादा इवेपोरेशन होता है. ऑन द अदर हैंड वहीं वो रीजन्स जो कि सी एरिया से काफी दूर होते हैं, वहाँ पे जो वाटर वेपर है वो एयर में मोस्टली तब प्रेजेंट होता है व्हेन देयर इज रेनी सीजन. ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ एयर इज डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक. सो स्टूडेंट्स, एयर में डस्ट एंड स्मोक भी प्रेजेंट होता है. डस्ट पार्टिकल्स एयर में फ्लोट करते हैं एंड दे कैन ऑफन बी सी. इन्हें आप देख सकते हैं जब आपके रूम में, एक डार्क रूम में सनलाइट एंटर करती है, सो दीज डस्ट पार्टिकल्स कैन बी इजीली सीन इन द एटमॉस्फेयर. स्मोक इज फॉर्म. स्मोक का फॉर्मेशन कब होता है? जब फ्यूल्स बर्न होते हैं, and the smoke is harmful for all the living beings, right? You can often see smoke. आप oftenly see smoke को देख सकते हो जब ये फैक्ट्री की चिमनी से प्रोड्यूस होता है या व्हीकल के एग्जॉस्ट के थ्रू प्रोड्यूस होता है, स्पेशली इन लार्ज सिटीज. एंड ये स्मोक जो है एयर को पोल्यूट करता है एंड इससे काफी सारी एयर बॉर्न डिजीजेस भी होती हैं. यू कैन सी दिस इज द डस्ट पार्टिकल्स. इस तरीके से डस्ट पार्टिकल्स जो हमारे एयर में जो प्रेजेंट है वो दिख रहे हैं. ये व्हीकल्स के एमिशन के थ्रू जो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है. यहाँ पे पुलिसमैन हैं जो कि फेस कवर कर रहे हैं ड्यू टू एयर पोल्यूशन. ओके, एंड दिस इज स्मोक व्हिच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ फैक्ट्री, राइट. तो एयर दैट मूव्स इज कॉल्ड विंड. एज आई टोल्ड यू कि मूविंग एयर को विंड कहा जाता है. एंड विंड कैन मेक ऑब्जेक्ट्स मूव. विंड के थ्रू ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, जैसे कि द लीव्स ऑन ट्रीज. ट्रीज की जो लीव्स है वो मूव करती हैं. सेल बोट या पिन व्हील्स मूव करती हैं. एंड व्हेन द विंड ब्लोज स्ट्रांगली, एंड जब विंड काफी स्ट्रांगली ब्लो करती है तो इससे जो ट्रीज है वो अपरूट हो जाते हैं एंड बिल्डिंग्स या अदर प्रॉपर्टी को भी काफी डैमेज होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर. अब एयर की क्या इंपॉर्टेंस है? सो आज वी ऑल नो कि सभी लिविंग बींग्स को एयर की रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है टू सर्वाइव, राइट. हम सभी ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं. हाउएवर, लेकिन जो हाई ऑल्टीट्यूड्स है वहाँ पे एयर काफी थिन हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्रीथ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. एंड इसीलिए माउंटेनियर्स जो हैं अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं व्हेन दे क्लाइम हाई माउंटेन्स और द हाई ऑल्टीट्यूड्स. डाइवर्स भी जो है अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं
जब वो काफी डीप इनटू द सी डाइव करते हैं, बिकॉज वहां पे भी एयर अवेलेबल नहीं है अंडर द वाटर फॉर द ह्यूमंस टू ब्रीथ। ओके, पीपल विद ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, वो लोग जिन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करी जाती है टू हेल्प देम, राइट। देन इफ वी टॉक अबाउट एक्वेटिक एनिमल्स, सो एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस, ये भी क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं विच इज डिसॉल्व्ड इन दी वाटर। ओके, एंड फॉर दैट पर्पस दे हैव स्पेशल ऑर्गन नोन एज गिल्स। एक्वेटिक एनिमल्स के पास, लाइक फिशेस, इनके पास गिल्स नाम का एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो कि इस ऑक्सीजन को वाटर में से एक्सट्रैक्ट करता है। If we talk about dolphins and whales जो है, they do not have gills because they are mammals, they breathe through their lungs. Okay, तो dolphins and whales जो हैं, ये एयर डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही इनटेक करती हैं एंड इसीलिए ये बार बार वाटर के अपर सरफेस पे आकर जो एयर में ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसको इनटेक करती हैं एंड अपने ब्लो होल्स के थ्रू, जो इनके हेड के दोनों साइड पे ब्लो होल्स होते हैं, उनके थ्रू ये ब्रीथ करती हैं। देन ह्यूमन बींग्स जो कि मैमल्स हैं, वो अपने नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं एंड देन द एयर जो है कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में जाती है। देन देयर आर इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस, वो अपने किसके थ्रू, जो उनकी बॉडी के साइड्स में स्मॉल होल्स होते हैं जिन्हें स्पाइरेकल्स कहा जाता है, इसके थ्रू इंसेक्ट्स ब्रीथ करते हैं। देन amphibians are the animals which can live on both, that is land and water. Okay, so amphibians land and water दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग एंड सेलेमेंडर। तो ये एनिमल्स हैं जिनके पास कुछ स्पेशल वेज होते हैं सो दैट ये वाटर एंड लैंड दोनों पे सर्वाइव कर सके, ब्रीथ कर सके। देन वी हैव अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स भी क्या करते हैं, अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। बर्ड्स जस्ट लाइक ह्यूमंस, बर्ड्स भी ह्यूमंस की तरह यानी कि अपने लंग्स का यूज करती हैं टू ब्रीथ द ऑक्सीजन। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट यूजेस ऑफ एयर। बात करते हैं एयर के यूजेस की। सो एयर जो है हेल्पफुल है लिविंग बीइंग्स के लिए इन मेनी वेज। हाउ? सी, एयर जो है पॉलिनेशन में हेल्प करता है। दैट इज व्हाट कि सीड्स, पॉलिनेशन मींस द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the male part of the flower to the female part of the flower, reproductive part of the flower, that is called pollination. तो pollination process में air help करता है एंड साथ ही सीड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में स्प्रेड करने में भी एयर इज हेल्पफुल। सेकेंडली, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है लाइक फ्लूट्स एंड माउथ ऑर्गन, ये वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर ओनली। थर्ड, एयर जो है लाइटर सब्सटेंसेस को, यानी कि जो हल्के सब्सटेंसेस हैं उनको सेपरेट आउट करने में भी हेल्प करती है। जैसे कि ग्रेस में से जो आप हस्क सेपरेट करते हो बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, उसमें एयर इज द ओनली एजेंट व्हिच हेल्प्स आउट। देन द ऑक्सीजन इन द एयर, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो सभी लिविंग बीइंग्स के ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए जरूरी है। देन एयर जो है बर्निंग के लिए भी रिक्वायर्ड है, बिकॉज विदाउट एयर जो है चीजें जो है थिंग्स कैन नॉट बर्न। देन विंड एनर्जी को यूज किया जाता है विंड मिल्स को रोटेट करने के लिए। ओके, एंड ये विंड मिल्स जो हैं काफी सारे टास्क के लिए यूज किया जाता है, सच एज पंपिंग वाटर, रनिंग फ्लावर मिल्स एंड इवन फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। Then next, plants need carbon dioxide and carbon dioxide also is present in the air only. Okay, and फिर इसी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज की जाती है एंड उसके साथ साथ हमारे अर्थ को वार्म रखती है ये गैस बाय ट्रैपिंग हीट फ्रॉम द सन। नेक्स्ट, व्हाट एयर को कुछ ऑब्जेक्ट्स में फिल किया जाता है लाइक टायर, ट्यूब, बैलून, सो दैट वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। देन मूविंग एयर और विंड, जो मूविंग एयर विंड है वो क्या, एरोप्लेन, सेलिंग बोट, फ्लाइंग काइट्स एंड ओपनिंग पैराशूट्स को फ्लाई करने में भी हेल्पफुल है। So these are the different uses or the importance of air, right? So we are done with the air and now next we come to what? Water. So water is essential. Water जो है ये भी essential है सभी living beings के survival के लिए एंड हमारे अर्थ का अबाउट 3/4 सरफेस है जो कि वाटर से कवर्ड है। ओके, वेरियस प्लेसेस में वाटर फाउंड किया जाता है लाइक पॉन्ड, रिवर, लेक, सीज एंड ओशियन। इनफैक्ट वाटर जो है अंडरग्राउंड एंड इवन ग्लेशियर्स में भी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ आइस, राइट। इन एडिशन इसके साथ साथ वाटर हमारे एयर में भी प्रेजेंट है एज अ फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ओके, तो मोस्ट ऑफ द अर्थ वाटर, अर्थ का जो मोस्ट ऑफ द वाटर है दैट इज अबाउट 97% वाटर ओशन एंड सीज में प्रेजेंट है एंड कैसा है, सॉल्टी है।
ये सॉल्टी वाटर जो है सूटेबल नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग और फॉर द पर्पस ऑफ वाटरिंग क्रॉप्स। ओके, दैट मीन्स केवल 3% वाटर जो है हमारे अर्थ का वो फ्रेश वाटर है। बट however एक लार्ज अमाउंट ऑफ दिस फ्रेश वाटर, इस 3% फ्रेश वाटर में से काफी ज्यादा अमाउंट फ्रेश वाटर है जो कि या तो फ्रोजन है यानी कि ग्लेशियर्स में फ्रोजन है, या फिर काफी डीप अंडर द ग्राउंड लोकेटेड है, एंड उसको एक्सट्रैक्ट करना काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। इसीलिए केवल 0.01% ऑफ ऑल वाटर जो है इजिली एक्सेसिबल है एज सरफेस वाटर इन द रिवर्स, लेक्स एंड स्वैम्प। ओके, जस्ट अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ ऑल द वाटर, जितना भी वाटर अर्थ पे प्रेजेंट है उसमें से केवल स्मॉल पोर्शन ही है जो एक्चुअली हम सभी के लिए अवेलेबल है टू यूज। ह्यूमन बॉडी भी अप्रोक्सीमेटली 70% वाटर से बनी है, एंड ब्लड के अंदर अबाउट 98% वाटर प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर की इंपॉर्टेंस की बात करें सो वाटर इज वाइटल फॉर लाइफ। वाटर जो है लाइफ के लिए काफी जरूरी है। एक पर्सन जो है सेवरल वीक्स तक फूड के बिना सर्वाइव कर सकता है, बट विदाउट वाटर सर्वाइवल जो है कुछ फ्यू डेज तक ही लिमिटेड है। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल दोनों के पास ही कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जिनको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर सर्वाइवल। ओके, अप्रोक्सीमेटली एज आई टोल्ड यू कि ह्यूमन बॉडी का 70% जो है वाटर का बना है। हम वाटर कंज्यूम करते हैं फूड के थ्रू, ड्रिंक्स के थ्रू, एंड फिर उसे लूज करते हैं थ्रू यूरिन, स्वेट एंड ऑल्सो द एयर वी एक्सेल। ओके, वाटर एक की रोल प्ले करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी। इन हॉट वेदर में हम ज्यादा पानी पीते हैं, राइट? इससे हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो स्टेबल रहता है। एंड व्हेन वी स्वेट, जब हमें स्वेटिंग होती है तो हमारी बॉडी का जो वाटर है वो हमारी स्किन के थ्रू इवेपोरेट होता है एंड हमारी बॉडी हीट को कैरी करता है, जिससे हमारी बॉडी कूल रहती है। ओके, देन इन प्लांट्स में भी वाटर रिक्वायर्ड है फॉर सीड जर्मिनेशन, फॉर ग्रोथ। ओके, इसके साथ साथ वाटर सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट्स जो है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं फ्रॉम द एयर, एंड उसके बाद वो अपना फूड प्रेजेंस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फूड प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है, दिस फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ द प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। देन वाटर जो है सॉइल में से इनटेक किया जाता है, किसके थ्रू? प्लांट की रूट्स के थ्रू। प्लांट की रूट्स ही हैं जो सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, एंड हमारे फूड के अंदर भी काफी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली लाइफ के अलावा, लाइफ के लिए तो वाटर नेसेसरी है ही, उसके अलावा वाटर के काफी यूजेस है। यानी कि वाटर को हम कुकिंग एंड क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, राइट? उसे डैम्स में यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। फार्मिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इन सभी के लिए वाटर इज रिक्वायर्ड। देन वाटर एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह भी सर्व करता है, एंड वाटर एक हैबिटेट भी प्रोवाइड करता है फॉर द वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। वाटर हीट्स अप। वाटर जो है एज कम्पेयर टू लैंड काफी जल्दी हीट भी हो जाता है एंड कूल भी हो जाता है, एंड यही प्रॉपर्टी है जो हेल्प करती है हमारी वाटर बॉडीज के टेम्परेचर को स्टेबल रखने के लिए, या एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंफर्टेबली सर्वाइव करने के लिए इवन इन द एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। Now next we have the topic that is water pollution. Okay, so now we are going to start with the new topic that is water pollution. Most of the water we use is sourced from rivers and lakes. ज्यादातर पानी जो हम यूज करते हैं वो हमें रिवर्स या लेक से मिलता है एवरी डे। लेकिन हर रोज काफी सारे हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें वाटर बॉडीज में डंप कर दिया जाता है, एंड जिससे ये वाटर डर्टी या इम्प्योर हो जाता है, राइट? एंड जब वाटर कंटेमिनेट होता है इन सब्सटेंसेस के थ्रू, देन वी से कि वाटर क्या हुआ है? पॉल्यूट हुआ है। तो इस तरीके से एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे ये रिवर, लेक, पॉन्ड एंड जितने भी अदर वाटर बॉडीज में वाटर प्रेजेंट है वो इम्प्योर होता है कुछ हार्मफुल मटेरियल्स के ऐड होने की वजह से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। ओके, सो वाटर को पॉल्यूटेड कब कंसिडर किया जाता है? जब वो क्या ड्रिंकिंग या बेदिंग पर्पस के लिए आगे सेफ नहीं रहता। जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो वाटर को इम्प्योर बनाते हैं, उन सब्सटेंसेस को वाटर पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। ओके, एंड ये पॉल्यूटर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वाटर को पॉल्यूट करने के लिए एंड उसे लिविंग बींग्स के लिए अनसेफ बनाने के लिए, राइट?
कुछ कॉमन पॉल्यूटेंट्स इवन है लाइक सीवेज, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, दीज आर सर्टेन वाटर पॉल्यूटेंट्स। ओके, ये सब्सटेंसेस जो हैं ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट्स के लिए काफी हार्मफुल है, इवन डेडली पॉइजनस है। वाटर फ्रॉम रिवर एंड लेक के जो पानी है वो ऑफनली काफी हाई पॉल्यूटेड रहता है एंड ये हमारे घर के लिए सेफ नहीं है फॉर द यूज, जब तक इसे प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता। एंड बिफोर इट इज सप्लाइड, इसको हमारे घर तक सप्लाई करने से पहले इस पॉल्यूटेड वाटर को क्लीन किया जाता है, इसे ट्रीट किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पे, तो दैट इसकी जो ओडोर है एंड इम्प्योरिटीज है वो रिमूव की जा सके। ओके, फिर उसके बाद जो वाटर हमें मिलता है जो क्लीन है, सेफ टू ड्रिंक है, उस वाटर को पोर्टेबल वाटर कहा जाता है। एंड जो वाटर हमें टैप्स के थ्रू रिसीव होता है हमारे घर पे, वो यूजुअली पोर्टेबल वाटर ही होता है बिकॉज इट इज क्लीन एंड सेफ टू ड्रिंक, राइट? इट इज क्लीन एंड इट हैज नो बैड स्मेल। हाउएवर, लेकिन कभी कभी इवन जो क्लीन लुकिंग वाटर है, यानी कि ऐसा पानी जो साफ दिख रहा है, कभी कभी ऐसे पानी के अंदर भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नेकेड आइज से विजिबल नहीं होते एंड ऐसे पानी को पीने से भी हम बीमार पड़ सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट, कि कभी कभी क्लियर एंड ओडोरलेस वाटर भी सेफ नहीं होता फॉर द ड्रिंकिंग एंड इसीलिए क्या जरूरी है कि हम पहले टैप वाटर को भी प्योरीफाई करें अपने घर पर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो कुछ कॉमन वेज है जिससे हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं एट अवर होम, दैट इज यूजिंग वाटर फिल्टर यूज कर सकते हैं, क्लोरीन टैबलेट्स ऐड कर सकते हैं कि वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करके भी हम वाटर को प्योर बना सकते हैं एट अवर होम। नेक्स्ट वी हैव वाटर कंजर्वेशन। तो एज द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो, जैसे कि हमें पता है हमारी जो पॉपुलेशन है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रही है, तो हमारा जो वाटर का यूज है वो भी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है एंड अनफॉर्चुनेटली वाटर जो है वाइजली यूज नहीं किया जा रहा है। वाटर का ओवर यूज हो रहा है जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हो चुका है। कुछ स्टेट्स है जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे पानी की कमी भी होने लगी है। ओके, इनफैक्ट जो अदर स्टेट है वहां भी वाटर स्कैसिटी एक अब कंसर्न बन चुका है बिकॉज ऑफ वेस्टेज एंड ओवर यूज। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम क्या करें, हम वाटर को केयरफुली यूज करना सीखें एंड उसको अपने फ्यूचर नीड्स के लिए कंजर्व करें। ओके, then next we have what rainwater harvesting. So collecting and storing rainwater from the rooftop of building is known as rainwater harvesting, right? That is what, कि जो बारिश का पानी होता है रेन वाटर, उसको कलेक्ट करना एंड उसको स्टोर करना बिल्डिंग्स के रूफ टॉप से, दैट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, अगर इसे वाइजली यूज किया जाए तो रेन वाटर क्या कर सकता है, वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकता है। तो कुछ वेज है कैसे हम रेन वाटर को कलेक्ट करेंगे एंड फिर इसे यूज करेंगे। सबसे पहले रेन वाटर जो हमारे रूफ टॉप्स यानी कि घर की छतों पे गिरता है, आप उसको डायरेक्टली पहले एक फिल्टर टैंक में डालें जिसके अंदर कुछ सैंड एंड पेबल्स होंगे। ओके, फिर यहाँ से ये फिल्टर्ड वाटर जो एक स्टोरेज टैंक में फ्लो करेगा एंड फिर स्टोर्ड वाटर को हम लेटर कुछ एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक फॉर द गार्डनिंग, बेदिंग, फ्लोर क्लीनिंग एंड फॉर ऑल्सो वॉशिंग। द साइड्स ऑफ रोड्स की जो साइड्स हैं उन्हें आप ब्रिक्स से लाइन कर सकते हैं सो दैट जो रेन वाटर है वो डायरेक्टली कहाँ जाए, ग्राउंड में चला जाए। ओके, जिससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज हो सकता है। देन नेक्स्ट स्पेशल वेल्स बनाए जा सकते हैं सो दैट वी कैन कलेक्ट द रेन वाटर। ओके, एंड ये वाटर जो है इसके बाद प्योरीफाई करके हम कम्युनिटीज तक सप्लाई कर सकते हैं फॉर द यूज। नेक्स्ट, लार्ज डैम्स, बड़े बड़े डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं जहां भी पॉसिबल है सो दैट एक्स्ट्रा रेन वाटर को स्टोर किया जा सके जब वो रिवर्स के थ्रू फ्लो करते हैं एंड फिर स्टोर्ड वाटर को हम फार्मिंग, ड्रिंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इस तरीके से डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक दैट इज स्टेप वेल्स। तो कुछ स्ट्रक्चर्स है लाइक बावड़ी इन राजस्थान एंड वाव इन गुजरात। ये कुछ ट्रेडिशनल स्टेप वेल्स हैं जिनको वाटर स्टोर करने के लिए एंड इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है उन एरियाज में जहाँ पे रेनफॉल काफी कम होता है, बारिश काफी कम होती है। ओके, एंड ये स्टेप वेल्स को इंडिया में अराउंड 600 ईयर्स अगो डेवलप किया गया था। यू कैन सी दिस इज द बावड़ी इन राजस्थान, अ काइंड ऑफ स्टेप वेल। ओके, तो इनको डिजाइन किया जाता है एज अ वेल और एज अ पॉन्ड जिसमें स्टेप्स होते हैं एंड इससे क्या पानी नीचे की तरफ जाता है। एंड इनका जो सबसे मेन एडवांटेज है दैट इज व्हाट, इसमें रेन वाटर कलेक्ट होता है एंड ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन रहता है। ओके,
Now, next we have the topic of what solar energy. So, as you have learned earlier that plants जो है sunlight का use करते हैं अपना food produce करने के लिए by the process of photosynthesis, right? So, beside this, अब इसके अलावा sun हमें light and warmth provide करता है. तो basically sunlight जो है अर्थ सरफेस पे सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. यू मे हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा कि जो सोलर पैनल्स है उनको काफी सारी बिल्डिंग्स में इंस्टॉल किया जाता है. एंड ये पैनल्स जो है कहाँ से सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं. इसी तरीके से सोलर कुकर्स का यूज किया जाता है फॉर प्रिपेयरिंग फूड एंड सोलर हीटर्स का यूज किया जाता है टू हीट दी वाटर. ओके, एंड ये सभी सनलाइट की एनर्जी के ऊपर फंक्शन करते हैं. तो बेसिकली सनलाइट जो है एसेंशियल है फॉर लाइफ. सभी लिविंग बींग्स चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी लिविंग बींग्स क्या करते हैं सन के ऊपर डिपेंडेंट है, सन के ऊपर रिलाई करते हैं एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. एज वी हैव डिस्कस कि प्लांट्स सबसे पहले अल्टीमेटली इस एनर्जी का यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड उसके बाद ह्यूमन बींग्स या जो अदर एनिमल्स हैं ये सभी इन्हीं प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं फॉर देयर नरिशमेंट एंड देयर ग्रोथ. तो ये जो एंटायर लाइफ साइकिल है अर्थ पर किसके थ्रू सपोर्टेड है बिकॉज ऑफ द सन हीट एनर्जी और द लाइट एनर्जी. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक फॉरेस्ट. व्हाट इज फॉरेस्ट? फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया, एक बड़ा सा एरिया जो कि थिक ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड श्रब से कवर्ड है, दैट इज नोन एज फॉरेस्ट. काफी वाइड वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट यानी कि जंगलों में सर्वाइव करते हैं. फॉरेस्ट एक वेल स्ट्रक्चर कम्युनिटी है प्लांट्स एंड एनिमल की. एंड फॉरेस्ट हमारे लिए काफी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है बिकॉज काफी सारे एसेंशियल आइटम्स जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं वो हमें फॉरेस्ट के थ्रू ही प्रोवाइड किए जाते हैं. फॉरेस्ट एक नेचुरल शेल्टर भी है फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेप्टाइल, इंसेक्ट्स एंड द एनिमल्स, ओके, व्हिच प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्श वेदर एंड द सन. तो फॉरेस्ट एक मेजर रोल प्ले करता है एयर में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए सो दैट अर्थ का क्लाइमेट रेगुलेटेड रहे एंड फिर फ्लड्स को, सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड्स को भी प्रिवेंट करता है. नाउ व्हाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट? अब फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? तो स्टूडेंट्स फॉरेस्ट जो है सेवरल रीजंस की वजह से इम्पोर्टेंट है. तो लेट्स डिस्कस द फ्यू वेज. नंबर 1, सोर्स ऑफ फायरवुड. ठीक है, सो हमारे वर्ल्ड के काफी सारे रीजन्स में वुड जो है अभी भी एक प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल है फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. हमारे कंट्री में अबाउट 43% टोटल एनर्जी जो हम कंज्यूम करते हैं दैट कम्स फ्रॉम द वुड ओनली. ओके, एंड वुड को जब चारकोल में कन्वर्ट किया जाता है ये और ज्यादा एफिशिएंट फ्यूल बन जाता है. नेक्स्ट, सोर्स ऑफ फॉडर. फॉरेस्ट जो है फूड भी प्रोवाइड करते हैं फॉर द ग्रेजिंग एनिमल्स. ठीक है, काफी सारे टाइप्स की ग्रासेस, ट्रीज एंड बुशेस हैं जो फॉरेस्ट में ही फाउंड की जाती है एंड ये एक न्यूट्रिशियस फॉडर है फॉर द लाइवस्टॉक. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट एज द सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट, यानी कि फॉरेस्ट से काफी सारे मेडिसिनल प्लांट्स में मिलते हैं. सिंस एंशिएंट टाइम से ही द पीपल यानी कि हम सभी लोग इस पे हर्ब्स पे रिलाई करते हैं या उन प्लांट्स के ऊपर रिलाई करते हैं जो फॉरेस्ट में फाउंड किए जाते हैं एंड उनसे क्या आप काफी सारी इलनेस यानी कि बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं. देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, काफी लंबी लिस्ट है मेडिसिनल प्लांट्स की जिनको ट्रेडिशनल हीलिंग मेथड्स में यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल तुलसी, नीम, अश्वगंधा, गार्लिक एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज व्हाट? फॉरेस्ट क्या है? फूड एंड शेल्टर का भी सोर्स है फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज. ओके, काफी सारे ट्राइबल ग्रुप्स जो है हमारी कंट्री के वो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्टेड एरियाज में रहते हैं एंड फॉरेस्ट उन्हें फूड, शेल्टर, वाटर, मेडिसिन जैसे एसेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल. So this is the reason why forests are important. Next is deforestation and its causes. Deforestation क्या है और इसके causes क्या है? तो बेसिकली ट्रीज को एक बहुत बड़े स्केल पे कट करना या फॉरेस्ट को क्लियर कर देना, that process is known as deforestation. So the process of clearing forest land by cutting down trees to meet the demand for wood or land is called deforestation. एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम फॉरेस्ट लैंड को क्या करते हैं? क्लियर कर देते हैं, वहाँ पे ट्रीज को कट करके so that wood और land की डिमांड को फुलफिल किया जा सके. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. ओके, अब काफी सारे रीजंस है डिफॉरेस्टेशन के. लाइक नंबर 1, पॉपुलेशन ग्रोथ. जैसे कि हमें पता है पॉपुलेशन काफी ज्यादा राइज हो रही है, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है
जिसकी वजह से ज़्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट है फॉर बिल्डिंग हाउसेस, इंडस्ट्री, स्कूल, ऑफिसेज एंड अदर फैसिलिटीज। एंड उनके लिए स्पेस बनाने के लिए फॉरेस्ट एरिया को क्लियर किया जाता है। नेक्स्ट, वुड फॉर इंडस्ट्रीज। सेकेंड रीजन क्या है डिफॉरेस्टेशन का, कि जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड जैसे से इम्प्रूव हो रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है एंड इंडस्ट्रीज को ज्यादा वुड की रिक्वायरमेंट है फर्नीचर, पेपर एंड अदर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए। एंड इसी ग्रोइंग डिमांड की वजह से फॉरेस्ट जो है कवर जो है फॉरेस्ट कवर काफी ज्यादा लॉस हो रहा है। नेक्स्ट, डैम कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो हम डैम्स बिल्ड करते हैं उसमें भी काफी सारा एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड जो है वो क्लियर किया जाता है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर भी जब एक बार स्टार्ट हो जाती है तो जंगलों में जब अपने आप नेचुरल तरीके से जब आग लगती है तो एक बार फॉरेस्ट फायर स्टार्ट होने के बाद उसे कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट होता है एंड जिसकी वजह से काफी लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज जो है क्विकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, नाउ इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो नंबर 1, कि डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन होता है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी ओवर द टाइम रिड्यूस हो जाती है। सेकेंडली, इट अफेक्ट्स द रेनफॉल पैटर्न। डिफॉरेस्टेशन हमारे रेनफॉल पैटर्न को भी इफेक्ट करता है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगा उससे क्या होता है, कुछ रीजन्स पे ड्रॉट पड़ने की भी कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट, बर्निंग वुड फ्रॉम डिफॉरेस्टेटेड एरिया। डिफॉरेस्टेड एरिया से जब हम वुड को बर्न करते हैं इससे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है एयर में इंक्रीज हो जाती है एंड टू मच कार्बन डाइऑक्साइड है तो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो इससे एयर पोल्यूट होगी एंड ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट होता है, जो कि क्या है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ के टेम्परेचर में ग्रेजुअल इंक्रीज होना। देन विदाउट ट्रीज to slow down the flow of rainwater it runs off quickly and can cause floods। अगर ट्रीज नहीं होंगे, बिकॉज ट्रीज भी रेन वाटर के फ्लो को स्लो डाउन करते हैं। अब जब पेड़ ही नहीं होंगे तो रेन वाटर का जो स्पीड है या फ्लो है वो स्लो नहीं होगा, काफी क्विकली रेन वाटर रन करेगा एंड इससे फ्लड्स के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। देन द रिमूवल ऑफ ट्रीज। ट्रीज के रिमूवल से क्लाइमेट चेंजेस भी आते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, जिससे वो एरिया वार्म हो जाता है, ड्राई हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर। देन विदाउट वेजिटेशन, बिना वेजिटेशन के एनिमल्स का भी जो नेचुरल सोर्स है फूड एंड शेल्टर का वो लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कि अब कैसे हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव डिस्कस कि फॉरेस्ट जो है ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट को काउंटलेस बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स लें कि हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, कंजर्व कर सकें। नंबर 1, गवर्नमेंट शुड रिस्ट्रिक्ट द एक्सेसिव कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो एक्सेसिव कटिंग है ट्रीज की उसे रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। ओके, अ ट्री फॉर अ ट्री अप्रोच शुड बी फॉलोड, मीनिंग दैट फॉर एवरी कट डाउन ट्री अ न्यू वन शुड बी प्लांटेड। एक अप्रोच जिसका नाम है ट्री फॉर अ ट्री जो है फॉलो किया जाना चाहिए, यानी कि हर एक चीज जो आप कट कर रहे हो उसके लिए एक न्यू ट्री आपको प्लांट करना चाहिए। देन पेपर बेस्ड मटेरियल, जितने भी पेपर बेस्ड मटेरियल है लाइक ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, नोटबुक्स, इन्हें रिसाइकल किया जाना चाहिए सो दैट जो कट ट्रीज को कट करने की डिमांड है वो रिड्यूस हो। ओके, उसके बाद लोगों को वुड को यूज करने के लिए डिस्करेज करना चाहिए एज अ फ्यूल सोर्स। देन अगर एक फॉरेस्ट फायर ब्रेकआउट होती है तो आप उसे कंट्रोल करें, क्विकली एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करें यूजिंग एडवांस टेक्निक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक दैट इज वन महोत्सव। तो वन महोत्सव जिसका मतलब है फेस्टिवल ऑफ ट्रीज, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड ऑल्सो इट एनकरेजेस द पीपल टू प्लांट मोर ऑफ देम। ओके, तो सबसे पहले इस वन महोत्सव को स्टार्ट किया गया था 1950 में, एक सक्सेसफुल ट्री प्लांटेशन के बाद, जो कि दिल्ली में हुआ था 1947 में, जिसके लीडर थे खुर्शीद अहमद खान, जो उस टाइम दिल्ली के कमिश्नर थे। तो उन्होंने इसको स्टार्ट किया था 1950 में एंड फिर इस वन महोत्सव के पर्पस को प्रमोट करने के लिए ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज कैरी आउट करी गई, जिसमें हमारे नेटिव स्पीशीज पे फोकस किया जाता है, क्योंकि वेल सूटेड होती हैं टू द लोकल एनवायरनमेंट एंड मोर लाइकली टू सर्वाइव। नेक्स्ट वी हैव चिपकू मूवमेंट। चिपकू मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1972 में, वेयर इन द टिहरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरांचल। ओके, इसके लीडर थे सुंदर लाल बहुगुणा एंड इसमें जितने भी ट्राइबल विलेजर्स थे, ओके, वो इन्वॉल्व थे, काफी उनमें से इलिटरेट भी थे। बट इस मूवमेंट का जो गोल था वो क्या था कि ट्रीज को कट डाउन होने से बचाना। ओके, जो ग्रीडी कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो ट्रीज को कट करते थे, सो उससे उनको बचाने का
ये मूवमेंट का गोल था. ओके, इंस्पायर्ड बाय गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे नॉन वायलेंस के, उससे इंस्पायर्ड होके विलेजर्स ने क्या करा, ट्रीज को हक कर दिया. इस तरीके से हक करा कि हम इन्हें क्या करेंगे, कट होने नहीं देंगे. और इस तरीके से उन्होंने ट्रीज को प्रोटेक्ट किया फ्रॉम बीइंग फेल्ड. तो ये जो वर्ड है चिपकू, दिस मीन्स टू हक. ओके, एंड ये मूवमेंट इवेंचुअली कहाँ से, हिमालयन फुटहिल्स से इंडिया के अदर पार्ट्स तक भी स्प्रेड हुआ. एंड आज के टाइम पे ये एक सिंबल है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स का. Now next we have soil, rocks and minerals. तो अब बात करते हैं soil, rocks and minerals की कि soil क्या है and इसका formation कैसे होता है. तो soil हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर की सबसे अपर मोस्ट लेयर है. ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट करता है एंड काफी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को शेल्टर भी प्रोवाइड करता है. फ्रॉम द क्रॉप से लेकर जितने भी प्लांट्स हैं जो सॉइल में ग्रो करते हैं, इसके अलावा वी गेट फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड मेनी अदर यूजफुल रिसोर्सेज वी गेट फ्रॉम दी सॉइल. सॉइल का फॉर्मेशन होता है रॉक से एंड इस प्रोसेस को, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस को कहा जाता है वेदरिंग. ओके, जनरली सॉइल के अंदर मिनरल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, एयर, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एंड एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे रॉक्स ब्रेक होकर क्या बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक्स. तो सॉइल फॉर्मेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं. नंबर 1, सबसे पहले रॉक्स जो हैं छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होते हैं विंड, वाटर या टेम्परेचर में चेंजेस जो आते हैं उनके इफेक्ट्स के थ्रू. ह्यूमन एक्टिविटीज है, लाइक ह्यूमन एक्टिविटीज, एनिमल्स एंड प्लांट्स भी क्या करते हैं, रॉक्स के ब्रेकडाउन में कंट्रीब्यूट करते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस. फिर ये ब्रोकन पार्टिकल्स फर्दर ब्रेकडाउन होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया के थ्रू, जिससे ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है. व्हाट इज ह्यूमस? इट इज अ न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल. देन मिनरल्स एंड सॉल्ट जो है फिर सॉइल में ऐड होते हैं ड्यूरिंग दिस स्टेज. ओके, दिस इज हाउ द सॉइल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल. सॉइल जो है 4 मेन कंपोनेंट्स की बनी है, दैट इज मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड एयर. एंड ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये काफी वेल ब्लेंडेड या वेल मिक्स्ड होते हैं इन द सॉइल, राइट. द ऑर्गेनिक पार्ट, सॉइल का जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसे ह्यूमस कहा जाता है. सॉइल के अंदर फिजिकल एंड केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज होती हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सॉइल का कलर, टेक्सचर, पोरोसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड जो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर प्रेजेंट है ये सभी इंक्लूड करे जाते हैं. नेक्स्ट वी हैव सॉइल प्रोफाइल. तो डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है डिपेंडिंग कि वो किस रॉक से उस सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है. ऑन द सरफेस के ऊपर हमें केवल सॉइल की टॉप लेयर दिखती है जो वेरी होती है इन थिकनेस, कलर, टेक्सचर, एसिडिटी, पोरोसिटी एंड कॉम्पोजिशन. एंड जो विजिबल सेक्शन है इसे कहते हैं सॉइल प्रोफाइल. ओके, आप सॉइल प्रोफाइल को अगर क्लियरली देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रेंच, वेल, डिच या बिल्डिंग फाउंडेशन को डिग करके यू कैन इजीली सी द सॉइल प्रोफाइल अंडर द ग्राउंड. एंड जो लेयर्स होती है सॉइल प्रोफाइल के अंदर दे आर कॉल्ड हॉरिजॉन्स. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टॉप सॉइल. टॉप सॉइल क्या है? सॉइल की सबसे टॉप मोस्ट लेयर को टॉप सॉइल कहा जाता है जिसके अंदर ह्यूमस होता है. ह्यूमस सॉइल के अंदर फर्टिलिटी ऐड करता है. प्लांट्स जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं इसी लेयर से सो दैट वो प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट कर सके. देन सेकेंड लेयर इज सबसॉइल. टॉप सॉइल के नीचे जो लेयर है दैट इज सबसॉइल. इसके अंदर मिनरल्स होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होते हैं एंड देयर इज आयरन ऑक्साइड आल्सो इन दिस लेयर. एंड जो लार्जर प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स एंड ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो यूजुअली इस लेयर तक रीच करती है. देन थर्ड इज सी हॉरिजन. ये लेयर जो है पार्शियली वेदर्ड मटेरियल से बनी है. इसके अंदर रॉक्स के छोटे छोटे लम्प्स होते हैं जिनमें क्रैक्स, होल या गैप्स होता है सो दैट इसके थ्रू वाटर इजिली पास कर सके एंड डीपर लेयर्स तक जा सके. नेक्स्ट वी हैव बेडरॉक. बेडरॉक हमारे सॉइल प्रोफाइल के बिल्कुल बेस में नीचे होता है. थोड़ा लाइट इन कलर होता है और इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता. इसके अंदर हार्ड रॉक्स होते हैं जिन्हें कट करना या ब्रेक करना काफी डिफिकल्ट होता है. दिस इज हाउ द होल सॉइल प्रोफाइल लुक्स लाइक. ओके, देन वी हैव रॉक्स एंड मिनरल्स. रॉक्स एंड मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? इन द आउटर, आर फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ. ओके, रॉक्स को यूज किया जाता है फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स लाइक हाउसेज, रोड, डैम्स एंड बिल्डिंग. ओके, इसके अलावा इनका यूज हम हाउस होल्ड में करते हैं फॉर किचन काउंटर टॉप, स्टेयर केसेस, फ्लोर्स, टेम्पल कंस्ट्रक्शंस. ओके,
रॉक क्या है? एक नेचुरल सॉलिड मटेरियल है जो वन और मोर मिनरल्स का बना होता है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय द फ्यूजन ऑफ मिनरल क्रिस्टल्स। मिनरल क्रिस्टल्स के फ्यूजन की वजह से एक सॉलिड मास बनता है विच इज नोन एज रॉक। ओके, व्हाट इज मिनरल? मिनरल एक नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल है जिसका एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है एंड इसके अंदर एक स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट होता है एटम्स का। रॉक्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनके अंदर मिनरल्स होते हैं एंड इन्हीं मिनरल्स का यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, such as automobile, aircraft, electronics, jewelry, cosmetics, and many more. Okay, you can see this is gold jewelry, talc, copper wire, silver coin. ये सभी minerals हैं जो हम everyday basis पे use करते हैं and they are present in the rocks only. Okay. Now next we have what? Fossil fuels. So fossil fuels are the substances that produce energy. Fuels क्या है? पहली बात, fuels वो substances हैं जो कि energy produce करते हैं when जब हम इन्हें burn करते हैं in the presence of air. Usually without emitting large amount of harmful gases. यानी कि जब आप इन्हें बर्न करते हो तो ये यूजुअली काफी लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस किए बिना जब बर्न होंगे उन्हें आप कहते हैं फ्यूल्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स के अंदर डिफरेंट फ्यूल्स का यूज होता है। ओके, फ्यूल्स डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है। कुछ सॉलिड फ्यूल्स हैं लाइक कोल एंड वुड, लिक्विड फ्यूल्स भी है, यहाँ पेट्रोल एंड डीजल एज अ लिक्विड फ्यूल, एंड कुछ गैशियस फ्यूल भी है दैट इज एलपीजी एंड सीएनजी। अब फॉसिल फ्यूल्स भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओके, वुड आपका अर्लीस्ट फ्यूल था जिसको ह्यूमन बींग्स यूज करते थे टू स्टार्ट द फायर। इसके बाद कोल एक क्रूशियल एनर्जी सोर्स बना बाद में, जिसको हम आज के टाइम पे स्टीम इंजन्स को पावर प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं एंड फ्यूल फर्नेसेस के लिए भी यूज किया जाता है ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। पेट्रोल एंड डीजल आपके मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स है व्हीकल्स में। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो व्हीकल्स में एज अ फ्यूल यूज किया जाता है दैट इज पेट्रोलियम एंड डीजल। ओके, यानी किसके थ्रू मिलता है? हमें एक प्रोसेस के थ्रू मिलते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। व्हाट इज क्रूड ऑयल? दैट इज पेट्रोलियम। ओके, इसे क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। इसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही हमें पेट्रोल एंड डीजल जैसे फ्यूल्स मिलते हैं। फिर इसके बाद है नेचुरल गैस, जिसे हम कुकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। देन वी हैव एलपीजी विच इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसे भी काफी वाइडली हम अपने घर में यूज करते हैं फॉर कुकिंग पर्पस। एंड काफी रिसेंटली एक अनदर फ्यूल यूज डेवलप हुआ है दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। इसे यूज किया जाता है टू पावर द व्हीकल्स। ओके, ये एक क्लीन ऑल्टरनेटिव है एज कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल। ओके, एज अ फ्यूल इसे यूज करते हैं इन द व्हीकल्स। फॉसिल फ्यूल्स जिसमें आप कोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल इन सबको इंक्लूड करते हो, ये सभी फॉसिल फ्यूल्स हमारे नेचर में एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट एंड इन फ्यूल्स का जो फॉर्मेशन होता है उनमें मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है। इनका फॉर्मेशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से होता है जिन्हें काफी हाई हीट एंड प्रेशर के अंदर डीप विद इन द अर्थ तब जाके इनका फॉर्मेशन होता है। हाउएवर, लेकिन अगर हम इन्हें काफी क्विकली यूज करेंगे तो ये हमारे प्लैनेट के लिए एक काफी सीरियस कंसर्न है। ओके, व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न, जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं तो ये स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी रिलीज करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। तो अवर हैवी रिलायंस ऑन दीज फ्यूल, और क्योंकि हम काफी ज्यादा हैवीली इन फ्यूल्स के ऊपर रिलाई करते हैं, डिपेंडेंट है, इसकी वजह से हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी काफी ज्यादा कॉज करते हैं such as global warming and poor air quality. Okay, so that's all for the chapter. This was all about the nature's treasure which we have discussed in this chapter today, and it was a kind of very interesting and major chapter. I hope you all must have understood it very carefully. You must have understood the importance of all the natural resources which the God has gifted to us and how can we conserve and protect them, okay, to sustain life for the future generation. Let's meet in the next session. Till then, keep going well and thanks to everyone.